Now, the next term is life membership fees. लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है, पूरी लाइफ की मेंबरशिप फीस ले रहे हैं। तो अदरवाइज में भी ये टर्म बुरा माना जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये टर्म बहुत ज्यादा खास है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, हर सब में इसका काम जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। Hi everyone, this is Shraddha Gandotra. Hope you all are doing really well. So today we are going to proceed with the very next part of the chapter, the part 6 for the chapter Not-for-Profit Organization for grade 12. And before this, we have completed 5 parts of the same chapter. So to the students who haven't still watched the previous videos in the classes, I suggest them abhi se jaldi se bhago and do attend those very classes firstly so that आप इन concepts को अच्छे से समझ सको. And to understand today's concepts and the upcoming videos, it is very important to see the part 5 of this very chapter and also the previous parts as well, so that आप इसकी detailed understanding जो है उसको साथ में continue कर सको. Let's proceed with this very part, and in this we are finally today starting with the terms. तो not for profit organization में कुछ specific terms हैं जिनका meaning, जिनके treatments हमें प्रैक्टिकल को करने के लिए बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है. So today we are finally starting with it, and in the previous class we detailed manner में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस क्या है और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस क्या हैं. तो अभी के लिए हम उनके प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट्स के अकाउंट्स जो है वो भी एक बार से फटाफट से चेक कर लेते हैं. We did this thing कि receipt and payment account जो है it records both revenue and capital items. चलो शुरुआत से इसको फटाफट से एक recap दे देते हैं. Receipt and payment account जो है it starts with the opening balance, ends with the closing balance. Also, receipt and payment account records both revenue nature transactions and capital nature transactions. तो जो receipts हैं उसमें revenue receipts और capital receipts दोनों आएंगी, और payment side पर आपकी revenue payments और capital payments दोनों record करी जाएंगी. Then comes income and expenditure account. Income and expenditure account को किसी भी तरीके की opening balance की जरूरत नहीं पड़ती है to start. Income and expenditure account सिर्फ और सिर्फ revenue nature transactions को record करता है, and that is why expenditure side पे we only record the revenue expenses and income side पर we only record revenue incomes, and whatever is the balancing figure, if it is on this side income expenditure से ज़्यादा है तो you will get your surplus, और अगर expenditure income से ज़्यादा जा रहा है तो you will get your deficit as your balancing figure. Last but not least we are having balance sheet. तो balance sheet जो है first of all liability side पे हम capital तो show करते ही हैं, ठीक है, बट यहाँ पर not for profit organization में उसी capital को capital fund के नाम से लिखा जाएगा. Alongside जितनी भी capital transactions हैं वो सारी की सारी किसमें रिकॉर्ड करी जाती हैं? बैलेंस शीट में. लाइबिलिटी साइड पे वी विल शो कैपिटल रिसीट्स, एसेट साइड पे वी ऑलवेज शो कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो ओवरऑल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज रिकॉर्डिंग बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस. आउट ऑफ दिस द रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस would be forwarded to income and expenditure account, and the capital nature transactions would be carried forward to the balance sheet. Capital receipts आपकी liability side पर आएंगी और capital payments जो हैं या expenditures जो हैं वो आपके asset side पर आएंगे. क्यों, कैसे और कौन सी ऐसी transactions हैं जो revenue, capital और इस तरीके से categorization में चली जाती हैं? Let's start with the terms. So for today we are having the very first term, and that is subscriptions. एंड सब्सक्रिप्शन टर्म जो है ना ये हमारे प्रैक्टिकल की सबसे फेवरेट और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म रहने वाली है. हमारे मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये जो है इसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं और हर क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा. तो अदरवाइज में भी ये टर्म बुरा माना जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो ये टर्म बहुत ज़्यादा खास है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, हर सब में इसका काम जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. तो सब्सक्रिप्शंस हैं क्या अल्टीमेटली? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि इट इज रन बाय द मेंबर्स, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से जो भी हम पैसा रिसीव करेंगे पीरियोडिकली, चाहे क्वार्टरली बेसिस पर, चाहे हाफ ईयरली बेसिस पर, चाहे ईयरली बेसिस पर,
बट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से जो भी अमाउंट रिसीव किया जाएगा, क्यों? उनकी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, उनकी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, सो अपनी जैसे फॉर एग्जांपल today we are very much known about that streaming sites, ठीक है? तो streaming sites है Netflix and everything, and we need to get subscription so that we can become member and we can access to those very जो भी उनका कंटेंट है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इन द सेम मैनर थोड़ा उसके साथ रिलेट हम कर सकते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस एग्जांपल। ठीक है, इन द सेम मैनर ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से हम पैसा रिसीव करेंगे पीरियोडिकली, चाहे क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर, सो दैट उनकी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखा जा सके, उसे अलाइव रखा जा सके, टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। जो भी पैसा रिसीव किया जाएगा दैट इज व्हाट? दैट इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैंने बोला कि ये पैसा पीरियोडिकली रिसीव करोगे, इधर क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली। दैट मींस कि ये जो पैसा है एक बार ये रिसीव हो रहा है, इट इज बिकमिंग अ रिसीट, ये हमारी रिसीट बन रही है। ठीक है, इन द सेम मैनर हम इसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये हम लोग पीरियोडिकली रिसीव कर रहे हैं। दैट मींस यहीं से इंफॉर्मेशन कैच करी कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो गया? इट इज रिकरिंग एंड रिपीटिंग इन नेचर, रिपीट होगा, हर साल पैसा रिसीव करेंगे, हर क्वार्टर में पैसा रिसीव करेंगे, हर हाफ ईयरली टाइम के बाद हम इसका पैसा रिसीव करने वाले हैं। दैट मींस कि ये जो सब्सक्रिप्शंस हैं इनकी नेचर क्या है? रिकरिंग है, रिपीटिंग है, एंड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर, रिपीटिंग इन नेचर, वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें पैसा आ रहा है, इट इज बिकमिंग रिसीट, एंड दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट जो है, देख लो अकाउंट में देख सकते हो आप, रेवेन्यू रिसीट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ आ रही हैं? रिसीट साइड पर। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा रेवेन्यू रिसीट्स का काम हो रहा है, व्हिच इज बिकमिंग एन इनकम, राइट? सो इट मींस कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रिसीट साइड पे आप देख सकते हो टू रेवेन्यू रिसीट्स, आपको यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन हमेशा देखने को मिलेगा, एंड इस सब्सक्रिप्शन को हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाकर कहां पर लेकर जाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पर, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू रिसीट and all the revenue transactions are recorded in the income and expenditure account, right? So this is all about subscription. Now the next term is life membership fees. Life membership fees नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है, पूरी लाइफ की मेंबरशिप फीस ले रहे हैं। तो यहाँ पर वो मेंबर्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो बोलते हैं भाई हम नहीं ये हर साल के चक्करों में पढ़ना चाहते हैं, तो एक ही बार में बता दो जो भी अमाउंट बनता है, वी वांट लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ऐसे जेनरस मेंबर्स भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो वो जो लमसम फीस एक ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करेगी उन पर्सन्स से जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर फॉर द होल लाइफ बनना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे आर पेइंग द अमाउंट दैट इज बिकमिंग लाइफ मेंबरशिप फीस। अलोंगसाइड कीप इन माइंड कि वो मेंबर्स हु आर becoming a part of the organization by paying the life membership fees, they are not supposed to pay the subscription, क्योंकि इसी से तो उनको छुटकारा चाहिए। ये हम हर साल के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि बार में बता दो हमारा कितना पैसा बनता है, राइट? तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है ये वो अमाउंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है उन मेंबर्स से जो कि अपनी पूरी लाइफ के लिए मेंबरशिप लेना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट मीन्स इट इज बिकमिंग वन टाइम पेमेंट फ्रॉम वन पर्सन, रिकरिंग नहीं ना है, रिपीटिंग नहीं ना है। ठीक है, तो नेचर साथ ही इसकी हम डायग्नोस कर सकते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए एक ही बार पैसा आ रहा है एक मेंबर से। दैट मींस इट इज नॉट दैट रिकरिंग इन नेचर, इट इज नॉट दैट मच रिपीटिंग इन नेचर। तो नेचर इसकी क्या हो गई? नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, व्हिच आर नॉन रिपीटिंग इन नेचर, दे आर व्हाट? They are the capital transactions, क्योंकि इसमें हमें पैसा आ रहा है, it is becoming a receipt and that is why it's a capital receipt। अब capital receipt को जरा चेक लो।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल रिसीट्स, रिसीट है तो रिसीट साइड पे होगा, और क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो भाई सबको घर लेके बैठा हुआ है, रेवेन्यू वालों को भी कैपिटल वालों के भी, तो कैपिटल रिसीट्स आपको देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कैपिटल ट्रांजैक्शंस का कोई काम होता है? नो, कैपिटल ट्रांजैक्शंस यहां से सीधा कहां पर जाती हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है हमारी? कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल रिसीट हम कहां शो कर रहे हैं? लायबिलिटी साइड। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इट इज बिकमिंग द रिसीट, रिसीट साइड पर शो किया जाएगा, एंड बैलेंस शीट में इट वुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. So overall, this is becoming the part of today. You have to revise subscriptions क्या है, life membership fees क्या है, and always revise these terms in terms of getting to know about their treatments as well, so that हम इसके practical application को साथ साथ समझते जाएं. I hope this part of the day is clear. And in case you're having any kinds of doubts or problems, you can just write down on the comment section. And if you're liking the content, if you're liking the videos, and in any way it's helping you out, please subscribe the channel, hit that bell icon so that you can get regular updates.